Hello guys, welcome to the second workshop of iChip. In this workshop, we will cover basics of behavioral modeling. So first of all, let's recap what we learned in the last workshop. Okay. So in the last workshop, we learned that there are three ways of modeling a digital circuit in Verilog. First is gate level modeling, second is data flow, and third is behavioral. So we covered gate level modeling and data flow modeling in the last workshop. So gate level modeling is a very low level modeling in which we specify all the gates and their connections that make up a complete circuit. So so gate level modeling is basically suitable for very small circuits. You can't describe a complete IC through gate level modeling. Okay. In flow modeling, we learned that we can use Boolean expressions for the outputs and directly implement the circuit. We can directly generate the schematic diagram after describing the circuit using Boolean expressions and all. Now, gate level modeling and data flow modeling are generally used for combinational circuits, whereas we can also use data flow modeling for designing some sequential circuits, but we prefer behavioral modeling over data flow modeling. We will learn about behavioral modeling now in this workshop. So what is behavioral modeling? Behavioral modeling is simply in which we describe the behavior of outputs and behavior of various registers which we use in the circuits. It generally describes in this behavioral modeling, we generally describe the states, how the states of various registers and variables are changing. The code of behavioral modeling is very similar to other languages like C and C++. So it is very easier for you to learn. Behavioral modeling is generally used to implement sequential circuits, but we can also design combinational circuits using behavioral modeling. Okay. So in behavioral modeling, we have procedures. Procedures is like what we are describing our system in this tier. We through procedures we describe our system, and the statements which we use for procedures are known as procedure statements. We have two different types of structured procedure statements in Verilog: always and initial. Always and initial are the statements which we use at the beginning while describing our system. All the statements that we have to use for describing the states in behavioral modeling are described below the always and initial blocks. And all the statements which we define inside the initial or always system, they collectively form a block. For describing a block, we begin it with a begin statement and end it with a end statement. Like in C, to describe a block, we use curly braces. Here, instead of curly braces, we use begin and end to start and end a block. So where we use initial and always. Initial statement generally it constitutes a block, and the statements in initial under this initial statement, they start executing at time equal to 0, and they execute only once. While in always block, you will see that the blocks are the blocks are executed continuously, but in initial block, this all the statements which are mentioned within the begin and end, they are executed only once. They all start at time equal to 0. This is an example of how we can use initial statement. In the first example, you can see that we haven't used begin and end because we are using only one statement. So for if we have to use a single statement, then we can avoid using begin and end statements. Initial blocks are generally used in test benches because in hardware design,
in the design bench, we don't have significance of initial block. We want to run the continuous. We want to run the circuit continuously. That's why we don't use initial block in the design bench. Now coming to always statement. Always the blocks defined under the always statement, they start executing at time equal to 0, and they continuously keeps executing in a loop throughout the complete execution. Always block, the statements defined under always statement will be keep executing. We use it in generally designing the circuit. Here in this statement, we have used always block to mention a clock, to design a clock. First, we initialize the clock at 0 value. Then, using always block, we are continuously toggling it at a timestamp of unit 10. Okay. Now coming over procedural assignment. In Verilog, in behavioral modeling, in assignment, in procedural, we use procedural statements. So in procedural statements, to assign value to a register or a vector register, a scalar register, or a concatenation of registers. So to assign values to registers, we use procedural assignment. Like it is similar to what we discussed about procedural statements. In the procedural blocks, we use procedural assignments. The LHS of a procedural assignment can be only a register. It cannot be a net type. While RHS can take any value, net or decimal or whatever we want to do. In procedural assignment, the specialty is the value placed on the variable will remain unchanged until another value is until it is updated with another value. While in normal assignments, the value keeps updating until and unless we use a procedural statement. Whenever we use a procedural assignment, then only the value will change. Now, we have two types of procedural assignments, blocking and non-blocking. So first we'll cover blocking assignments. Blocking assignments blocking assignment statements are executed in an order that they are specified. Like if we look at this example, here we have used all the blocking assignments. So first of all, for defining blocking assignments, we use a simple equal to sign. But for non-blocking assignments, we use a equal to sign preceded by a greater than question. It basically, you can visualize it as the imply sign that used in maths. So we use a simple equal sign to define blocking assignments. If you will look at this example, we have mentioned the order of statements. So the assignments, the values of registers, variables will be assigned in the same order that we have given in the block. So first of all, it will assign 0 value to x, y, 1 to y, and 1 to z. Then we'll assign value to count, then register A and register B values will be assigned. Blocking assignment are generally recommended for designing combinational circuits, whereas non-blocking are recommended for designing sequential circuits. Now coming over non-blocking assignments. So in non-blocking assignments, the compiler generally don't follow the order of sequence of the statements. All the statements are executed at the same time. Like they don't follow order. They will all execute it together. It's not like first value of x will be assigned, value of y will be assigned, then value of count will be assigned. No, they will execute in the same together, without irrespective of their order.
This is a simple example for non-blocking assignment. Now, understanding the example, we have taken a simple example of non-blocking assignments. So, first, the block will start executing when we will give the positive edge of the clock, like we have mentioned in this always block. The blocks which are mentioned under the always blocks, they have a condition. This is a general, what we can say, this is a general diagram, or like this is we define always block using this format. First of all, we will declare the always declare the always keyword. Then we will use an @ sign, and under it, there will be a condition. We will whenever we will get a positive edge of clock, then always block will be executed. Now, we are using non-blocking assignments in all the three statements. First of all, after one delay, no, these statements will be executed together. So register 1 will be given the value of input 1. Input 1 might be some variable, and register 2 will be assigned the value in 2 or in 3. And register 3 will be assigned the value of register 1. So initially, what will be the value of register 1 in the previous, like without, before updating the value of register 1 here. Suppose in the previous loop, we had register 1 might be containing value in 2. So in this, so when we will run in this loop, register 3 will be given what register 1 had in previous loop, which was in 2. So after execution of this always block, the register 3 will be assigned the value in 2 as it was in the previous loop, and register 1 will be assigned the value in 1. Okay. Now, timing controls. Uh, timing controls, behavioral timing controls are various kinds of timing controls are available in Verilog. They provide a simple way to uh, specify the simulation time at which various procedural statements will execute. Like in the previous example, we took delays here. So we are controlling we are controlling the time flow in the simulation. So these kind of delays, and we have other kinds of timing controls as well. So uh, using these timing controls, we specify the simulation time at which time the each statement will execute. We can do using these timing control methods. There are three timing control methods: delay-based timing control, event-based timing control, and level-sensitive timing control. Delay-based timing control was this that we discussed using hashtag and the time unit which want to through which we want to delay the statement. Event-based timing control can be understood as we want whenever after which event we want the statement to be executed. Like in this case, we are using always at posage. So no no in the statement register 2, whenever we are getting negative edge of clock, then only we are assigning then only we are executing the statement. So it can be understood as a event based timing control. And level sensitive timing control is when we will like suppose in this at the rate, if we remove the negative edge, we are only checking whether the clock is 0 or 1. So in level sensitive timing control, we check the level of either it is 0 or it is 1 of any variable. Generally, we check the level of clock. Uh, we can understand it like this. So the three different methods of timing control are delay-based, in which we can provide delay using hashtag; event-based, in which
we we execute the statement after an event is completed, and level sensitive is we execute a statement by checking the level of any variable. Either it is 0 or it is 1. Delays are very useful for simulation purposes. You will go through. Uh, you can see this when you will design some circuits. Here we have mentioned the same thing. You can go through the examples one by one. In the first example, we are using simple hashtag and the time unit was to delay bit. In the second statement, we are giving delay based. We are giving a delay of 10 units, and in the third statement, latency is a variable which we have defined here 20. So these all are examples of delay based timing control. Event based timing control, as I mentioned, we can use we used event based timing control using the symbol @ and succeeded uh, by a bracket, and under that the event will be mentioned, after which event the statement is to be executed. Like in this example, in the second statement, we have taken the positive edge of clock. So whenever the positive edge of clock comes, the statement will be executed. Whenever the negative edge of the clock comes, the statement will be executed. So we can look at this event-based control terms, timing control. Apart from clock, we can also use other variables. Like in this example, we have used reset clock or D. Uh, what does this mean? Reset clock or D? This event, this event that we have described under the brackets, it means whenever the value of reset clock or D or variable D will change, then only these blocks will be executed. Uh, these two are examples of event-based timing controls. Yeah. So now we will look at conditional statements. As in your high-level languages C and C++, you have conditional statements, if, else, case, and various other conditional statements. In Verilog also we have similar conditional statements. First, we will look at if and else conditional statements. This is the general syntax of if-else statement. If if we are using only a one statement, if we want to, if we are using only a one statement in if conditionals, in if conditions, then we don't need any curly braces, or we don't need to define else. If we want to execute two statements, then we use if else, and if we want to define multiple statements for a condition, then we can use if else, if else, if else. Like we can use various if else conditions in one block as well. The other type of conditional statement we have is case statement. In case statement, this is the general syntax of case statement. We are in case statement, we create various cases for a single expression, for the output of a single expression. Like this is the general syntax. The statement start with a case keyword succeeded by expression mentioned under the brackets. Then these alternative 1, alternative 2, alternative 3 are different cases. Uh, if we uh, if we achieved alternative 1 as the output of this expression, then statement 1 is to be executed. If we achieved alternative 2, then statement 2 is to be executed, and it has a default case as well. Like if the compiler doesn't meet
any of these alternatives. If the output of expression doesn't meet any of these alternatives, then the default statement will be executed. This is a simple example of how we can use case statements. Like we have mentioned a register, ALU control, 2-bit register, ALU control. Then we will check values of ALU control. In the case, in the expression, we will replace the variable ALU control, and we will check at different values of ALU control. If the value of ALU control is 0, then statement 1 will be executed. If it is 1, then statement 2. And if the value is neither of 0, 1, or 2, then we can display this. Okay. Now looping constructs in Verilog. There are 4 types of different looping statements in Verilog: while, for, repeat, forever. While and for looping, to you must have studied in your C programming as well. In Verilog, we have repeat and forever looping statements new. We will cover one by one all the looping controls. The syntax of while loop, you must all be familiar with. We start with the keyword while, and then we mention an expression, and after that we mention all the statements that we have to carry. So all the first of all, this is the basic of loops, that all the loops we will have to cover in begin and end, in initial and always blocks only. Okay, loops and loops can also contain delay expressions as well. So we have a simple example of while loop here. We have initialized count variable to 0. We have initialized count variable to 0. Then we are using while loop statement here. So while count less than 128, whenever the count variable will be equal to or greater than 128, then the compiler will exit the loop, and we are adding count 1 by 1. Okay, so this though you must have studied in C as well. It's not very hard. Okay, so but you have to remember this, that whenever you use a loop statement, you will have to put a begin and end as well. You can see this like when in your normal programming languages you use curly braces. Instead of curly braces, you have to use begin and end here in every cases. Now we will discuss for loop. For loop you must be familiar with. For loop, we have 3 parts: an initial condition, a check to see where we have to terminate the loop, a check condition for that, and after a procedural, and the third is procedural assignment to change the value of variable. So like the previous example that we executed using while loop, we can execute it using for loop as well. Here is the example how we can carry out previous one. We have mentioned the initial condition count equal to 0. Here we have mentioned it separately from the while loop. Then the check condition for terminating the loop, count less than 128. We have mentioned it at second place. Whereas in while we had only this expression. And the third is procedural assignment to update the value of variable, count equal to count plus 1. Now we have one more example for loop. You can go through this. Now we will cover repeat and forever loops. So in while loop and for loop, we used a condition to terminate a loop. But in repeat loop, we don't use a condition. We just specify the amount of time we have to
run the loop, execute the loop. So the syntax is very simple. We have to use the repeat keyword followed by followed by the number of times, number of iterations inside a bracket, and the keyword repeat is always followed by all the keywords for looping statements. They must contain begin and end statements. So we can specify the number of times we have to run the loop in repeat loop. That's it. We have a simple example of previous one that we executed using while loop and for loop, increasing the value of count. So we can execute that example using repeat loop as well. First, we initialize the value of count to 0. Then we use the repeat loop. We have to run it for 128 times, and then followed by the simple procedural assignment for count and a display keyword. When we come to forever loop, forever loop forever loop is a general loop that executes completely, that executes until and unless your simulation is running. We can does not contain. We can terminate the forever loop using finish task as well, but until the time the simulation is running, forever loop, the statements mentioned under forever loop will keep running, will keep executing. So the syntax of it is very simple. You have to use keyword forever. Then in the next line, you mention the statements using begin and end keywords. Forever loop is generally used for creating clocks in test benches or in test benches. Forever loop is used for that purpose. Now we will cover some Verilog examples, and Naveen will cover Verilog. अभी तक किसी को डाउट है? ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़े से ना. एक्चुअल में जो पीएस आएगा उसमें यही रहेगा कि सीक्वेंशियल सर्किट्स को ही डिजाइन करना रहेगा मेन. तो है ना. तो अपने को एक्चुअल में पता होना चाहिए कि ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग कहाँ यूज करते हैं. So screen is visible. Anybody? Divyam, screen is visible? हाँ भैया, स्क्रीन विजिबल है. अच्छा, ओके ओके. ठीक, फिर अपन एग्जांपल्स देखते हैं ना. बी फ्लिप फ्लॉप
एग्जांपल देखते हैं कि अपने को डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अभी तक अपने जो भी एग्जांपल्स देखे थे वो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन सर्किट्स के ऊपर थे, तो अपने सीक्वेंशियल सर्किट्स के एग्जांपल नहीं देखे थे। बिकॉज अपन ने भी क्या बोला, जैसे अपने पढ़ा कि सीक्वेंशियल सर्किट्स डिजाइन करने के लिए बेसिकली बिहेवियर मॉडलिंग यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अपन यहाँ पे अभी बिहेवियर मॉडलिंग यूज करेंगे डिजाइन करने के लिए। बिकॉज डेटा फ्लो मॉडलिंग में क्या होता है कि अपन असाइन स्टेटमेंट यूज करते थे। तो असाइन स्टेटमेंट में क्या होता था कि जो एलएचएस होता था वो अपन यूजुअली क्या लेते थे, नेट ही लेते थे, क्योंकि उसमें असाइन स्टेटमेंट क्या कर रहा था कि कंटिन्यूअसली वैल्यू को ड्राइव कर रहा था, स्टोर नहीं कर पा रहा था, है ना। सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होता है कि स्टोरेज एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अपने को रजिस्टर्स लेने होंगे, अपन जब वेरिएबल्स लेते हैं तो रजिस्टर्स लेते हैं, रजिस्टर्स में वैल्यू स्टोर करेंगे। तो उस वाली टेक्निक में अपन एक्चुअल में बिहेवियर मॉडलिंग यूज करके ही वो कर पाएंगे। कि जैसे अपन ने देखा था यहाँ पे कि बिहेवियर मॉडलिंग में इनिशियली ऑलवेज स्टेटमेंट्स के अंदर जो बिहेवियर स्टेटमेंट्स होंगे उनके एलएचएस में रजिस्टर्स होने चाहिए, ठीक है। वायर्स नहीं होने, नेट्स नहीं होने चाहिए एक्चुअल में। राइट हैंड साइड कुछ भी हो सकता है, जो एक वैलिड होके आएगी वो असाइन करनी है अपने रजिस्टर में, तो राइट हैंड साइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अंदर रजिस्टर ही होने चाहिए। बिहेवियरल मॉडलिंग को ये नहीं है कि ओनली सीक्वेंशियल सर्किट्स के लिए यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट भी बना सकते हैं इससे, तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, है ना। बट usually we use it for designing sequential circuits. So let's see this example of D flip flop. Here initially we'll specify this time scale, okay. So every time it will be in nanoseconds. Okay, so now we instantiate this module name, module DFF, input and output QD reset and clock, okay. So now we'll specify कि outputs कौन से, input कौन सा। तो output res Q, तो Q output था, और input D reset clock. Here we can see in this diagram also that D and clock are input and Q and Q bar are output. So एक बार Q bar को अपन neglect करें क्योंकि Q bar will be simply negation of Q. Okay, so we are focusing on Q, that what will be Q here. So sequential circuits जिसमें बताया होगा, sequential circuits बता दिए, तो वहाँ पे पता है कि D flip flop का जो टेबल होता है वो कैसा होता है। So D flip flop में सिंपली जो पॉजिटिव एज आएगी क्लॉक पे या नेगेटिव एज आएगी, वो डिपेंड करता है कि कैसे डिजाइन करना है। तो क्लॉक एज पे जो आउटपुट होगा वो सिंपली जो डी है अपना जो इनपुट है वो सिंपली वही आउटपुट आएगा। सो सी हियर at positive as of clock and negative as of reset. See, we'll talk about this why this negative as of reset is there. Okay, so now there are actually two statements if else. So what we did begin और end में इसको अपन ने डाल दिया, जैसे कर्ली ब्रेसेस लगा देते ना, तो वो सेम begin and end के अंदर डाल दिया। If reset is equal to 0, so Q is, oh simply reset, तो अगर 0 हुआ, this is asynchronous reset, तो reset कभी भी 0 हो जाएगा पूरी डिजाइन में, तो अपने को Q को 0 करना ही है, no other conditions apply, वो हो गई 0 asynchronous के केस में। And if else Q is equal to D, this is non blocking assignment, okay. So यहाँ पे ब्लॉकिंग यूज भी कर लेते तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट है ना। लेकिन जहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो जाते हैं वहाँ पे ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग का ध्यान रखना पड़ता है। एक्चुअली पूरी डिजाइन चेंज हो जाती है फिर कि ब्लॉकिंग यूज किया तुमने कि नॉन ब्लॉकिंग यूज किया, उसकी वजह से। सो हियर वी आर यूजिंग नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स। सो simply if reset is 0 then Q will be 0, output will be 0, okay. And if reset is not 0 then output will be the input, and this will only be updated at positive as of clock, okay. So always at the rate positive as of clock comma negative as of reset. So अपने पास दो सिग्नल्स होंगे इनपुट में, क्लॉक और रीसेट। तो जब क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी ना तभी अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, वरना उसके अलावा ये ऑलवेज ब्लॉक के जितना भी कुछ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि पॉजिटिव एज नहीं आएगी क्लॉक की। कॉम्बिनेशन सर्किट्स में जब अपन बिहेवियरल मॉडलिंग में उसमें डेटा फ्लो मॉडलिंग में देखे थे तो वहाँ पे कंडीशन नहीं थी, जब भी वैल्यू चेंज हो रही थी राइट हैंड साइड में तभी वो अपडेट हो जा रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी था वायर पे अपडेट हो जा रहा था। बट इस केस में अपने यहाँ पे बिहेवियर में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई वेरिएबल चेंज भी हो रहा है तो उसकी वैल्यू तभी अपडेट होगी जब ये ऊपर वाला जो ऑलवेज ब्लॉक में एट द रेट जो अपने इवेंट लगाया, जब इवेंट ट्रिगर होगा, पॉजिटिव एज आएगी क्लॉक की तभी होगा, या फिर रीसेट की नेगेटिव एज आएगी तभी होगा, वरना वो नहीं होगा, ओके।
ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर डी है तो डी चेंज हो गया तो सीधा क्यों नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो पॉजिटिव एस पे ही होगा, बिकॉज यहाँ पे हमने एक इवेंट कंडीशन डाल दी कि ये इवेंट होगा तभी होना वरना नहीं होना। ओके, सो अभी इसका अपन वो देख लेते हैं, टेस्ट बेंच देख लेते हैं, ये एक्सप्लेन किया कोड को। This is the test bench for DFF. So what we are doing here कि वही टाइम स्केल अपन ने डिफाइन कर दिया कि टाइम स्केल क्या होगा, फिर वही टेस्ट बेंच का नाम हो गया। अब टेस्ट बेंच में बताया था कि टेस्ट बेंच में जो आउटपुट्स होंगे वो वायर लेने, जो इनपुट्स होंगे वो रजिस्टर्स लेने। ओके, बिकॉज टेस्ट बेंच में अपन इनपुट्स देंगे तो कहीं स्टोर होंगे, सो दे शुड बी रजिस्टर इन टेस्ट बेंच फॉर इनपुट्स। सो अभी बाद में क्या किया अपन ने, जो DFF था उसका एक कॉपी अपन ने इनिशियलाइज कर लिया यहाँ पे। ओके, DFF UUT नाम से अपन ने जो DFF मॉड्यूल था उसका कॉपी बना लिया, उसमें अपन ने सेम सीक्वेंस में इनपुट आउटपुट दे दी। जैसे यहाँ पे इनपुट आउटपुट क्या थे, QD रीसेट क्लॉक, सेम सीक्वेंस में अपन ने दे दिया। ओके, QD रीसेट क्लॉक, एंड अभी अपन इनपुट्स देंगे इसको टेस्ट बेंच को। सो इनिशियल ब्लॉक में सी एक्चुअली अभी इस बात का ध्यान रखना कि जो इनिशियल ब्लॉक होगा ना वो डिजाइन मॉडल में यूज मत करना। ओके, बिकॉज इनिशियल ब्लॉक एक ही बार यूज होगा और वो अपन सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि एक बार इनपुट्स दे दे अपन टेस्ट बेंच में, जब इनपुट देना है अपने को, ठीक है, जो इनिशियलाइजेशन करना है वो टेस्ट बेंच में यूज करते हैं अपन। ऑलवेज ब्लॉक को ही मेजरली डिजाइन में यूज किया जाता है, एक्चुअली में इनिशियल ब्लॉक्स को नहीं किया जाता, और डिलेज को भी यूज नहीं करते अपन डिजाइन में। ओके, बिकॉज डिलेज जब सिंथेसाइज होगा ना डिजाइन तुम्हारा, तो जो सिंथेसाइज करने वाला जो टूल होगा सिंपली इग्नोर कर देगा डिलेज को, बिकॉज डिले तो एक्चुअल में वो तुम्हारे जो गेट्स जो एक्चुअल डिलेज होंगे ना, गेट डिले जो होता है वही डिलेज एक्चुअल में सर्किट में जाते हैं। अगर तुम्हें एडिशनल डिले लगाना होगा तो एक बहुत बड़ा फिर दूसरा सर्किट आ जाएगा जो एक्चुअल में डिले इंट्रोड्यूस करेगा मेन डिजाइन में। तो सिंपली जो ये हैश लगा के जो अपन डिलेज इंट्रोड्यूस करते हैं ना यहाँ पे, ये सिर्फ सिमुलेशन पर्पस के लिए होते हैं। सिंथेसिस टूल जो होता है वो कंप्लीटली इग्नोर कर देगा इनको, वो नहीं कंसीडर करेगा इनको। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें, देखते हैं अपन ने क्या किया, क्लॉक दी, पहले क्लॉक को अपन ने 0 कर दिया। ओके, बिगिन से अपन ने स्टार्ट किया, बिकॉज देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, एक्चुअली 2 स्टेटमेंट्स, अपन ने बिगिन से स्टार्ट किया। ठीक है, और फिर एंड में एंड कर दिया। कर्ली ब्रेसेस वाला जो सीन है वो वही है यहाँ पे, कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं तो वो ऐसे ही लिखना है। ओके, बिगिन और एंड के अंदर। सो क्लॉक इज इक्वल टू 0, इनिशियल अपनी क्लॉक को 0 किया, देन व्हाट वी आर डूइंग, रिपीट 32, वी आर एक लूप चला रहे हैं 32 टाइम्स अपन। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं अपन कि हर 10 टाइम यूनिट्स के बाद क्लॉक जो होगा वो उसका नेगेशन हो जाएगा। ठीक है, सो 10 टाइम यूनिट बाद अगर क्लॉक अपने वैल्यू को नेगेट करिए तो फिर उसका क्लॉक का जो है फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 29 minutes, and time units is in nanoseconds, so clock will be period of clock will be 20 nanoseconds. Okay, so ना अभी एक अगेन अपन ने इनिशियल ब्लॉक किया बिगिन, बिकॉज देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, सो बिगिन और एंड के अंदर अपन उनको कंबाइन कर लिया। रीसेट इज इक्वल टू 0, इनिशियली रीसेट इज 0, एंड अपन ने क्या बोला था कि रीसेट जब 0 होगा तब नहीं होगा क्यू, आउटपुट जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो इनिशियली रीसेट इज 0। ओके, सो जब तक रीसेट 0 रहेगा तब तक तो आउटपुट जो 0 रहना ही है, कि तुम इनपुट कुछ भी दो, फर्क नहीं पड़ेगा, चाहिए कितने भी इवेंट्स ट्रिगर हो जाए। ठीक है, कितनी भी बार पॉजिटिव आ जाए, जब तक रीसेट 0 होगा तब तक आउटपुट 0 होगा। ओके, सो नाउ रीसेट इज 1 आफ्टर 100 टाइम यूनिट्स। सो अब रीसेट 1 हो गया। सो ऐसी हाँ, अभी रीसेट मैंने 1 कर दिया, सो 100 यूनिट्स के बाद रीसेट 1 किया, सो उसके बाद पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज पे जो क्यू होगा वो डी की वैल्यू लेगा। ओके, सो बिगिन क्यू डी इज इक्वल टू 0, so initially d is equal to 0, and now it is saying that repeat 16, so एक लूप चलाया अपन ने 16 टाइम्स, जिसमें d क्या होगा, negation of d. ओके, आफ्टर एवरी 20 टाइम यूनिट्स। ओके, सो अभी जैसे अपन इसको जैसे एग्जांपल तो कि हैश, ओके, दिस इज द सेम थिंग कि लूप वाला ही है कि 32 टाइम्स चलेगा। ओके, सी सिमुलेट करेंगे जब अपन डिजाइन को, सिमुलेशन बताया था कैसे होता है, सिमुलेट करेंगे तो ये अपना जो है सिमुलेशन में जो टाइमिंग डायग्राम्स आएंगे वो ये वाले आएंगे। ठीक है, देखो क्लॉक है तो क्लॉक इज चेंजिंग आफ्टर एवरी 10 टाइम यूनिट्स। ओके, नेगेटिव पोजीशन, सो क्लॉक पीरियड इज 20। सी हियर
रीसेट को अपन ने क्या किया था, 0 कर दिया था इनिशियलाइज, और फिर अपन ने क्या बोला था कि 100 टाइम्स के बाद वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 100 के बाद रीसेट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। अभी अपन ने डी को क्या बोला था कि डी इनिशियल अपन ने 0 किया था, फिर अपन ने बोला था कि आफ्टर एवरी 20 टाइम यूनिट डी विल बी लाइक नेगेटेड। ओके, सो यहाँ पे 0 था, फिर 20 यूनिट्स के बाद 1 हुआ, फिर डी फिर से 0 हो गया, फिर 1 हुआ 20 के बाद, फिर 20 के बाद 0 हुआ। ओके, सो दिस इज डी, दिस इज क्लॉक एंड दिस इज द रीसेट सिग्नल। ओके, तो जब तक रीसेट 0 था तब तक तो ये 0 ही रहा। ओके, अभी जैसे रीसेट 1 हुआ तो रीसेट 1 होने के बाद जो डी क्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ डी एट एवरी पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये हुआ तो ये तो 0 हो गया। ओके, क्यू इज 0 बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव एज नहीं थी क्लॉक की। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे आते हैं क्लॉक की, यहाँ पे आते हैं जैसे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ओके एट 110 नैनोसेकंड, so this is the positive edge of clock. So एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि जो डी की जो वैल्यू थी वो क्यू ले लेगा। ओके, सो यहाँ इस पॉजिटिव एज पे क्या था, डी की वैल्यू कितनी थी, 1, सो क्यू भी कितना हो गया, 1। ओके, नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे आते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एट 130 नैनोसेकंड। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव एज आई, तो यहाँ पे पॉजिटिव एज पे डी की वैल्यू देखो कितनी थी, 0, तो क्यू भी कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, क्योंकि पॉजिटिव एज पे चेंज होगा, क्यू यहाँ पे 0 यहाँ पे हो गया था, क्यू एट 110 नैनोसेकंड्स, बट वो एक्चुअल में वो डी डी यहाँ पे 0 हो गया था, बट एक्चुअल में वो अफेक्ट कब होगा, क्यू कब 0 होगा, क्यू की वैल्यू कब लेगा, डी ओनली एट पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक। ओके, सो दिस इज पॉजिटिव एज एट ओनली दिस इवेंट, क्यू विल टेक द वैल्यू ऑफ डी। ओके, सो ऐसे ही आगे भी कि पॉजिटिव एज पे ही होगा, या फिर जब रीसेट की नेगेटिव एज आएगी, अगर मान लो मैंने यहाँ पे रीसेट 0 कर दिया होता था इतने टाइम्स के बाद, सो इट वोंट मैटर कि आपका पॉजिटिव एज कब आया, आपका एक कंडीशन आ गया ना, तो वो 0 हो जाता, क्यू आपका 0 हो जाता सिंपली, क्योंकि रीसेट आपका नेगेटिव से रीसेट आ गया। ओके, सो दैट इज एसिंक्रोनस रीसेट। ठीक है, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि अपन रीसेट जो है इवेंट जो ऑलवेज एट द रेट में जो अपन इवेंट कंडीशन डालते हैं वहां पे ना डाल के अपन सिंपली नीचे रीसेट की रीसेट 0 हुआ तो अपन आउटपुट 0 कर देंगे, वहां डालते तो सिंपली वो होता कि पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पे ही रीसेट चेक होता। लेकिन जब अपन ने इवेंट डाल दिया उसमें, तो एक्चुअल में एसिंक्रोनस हो गया कि नेगेटिव एज ऑफ रीसेट पे वो 0 हो रहा है। ठीक है, Siddham, I am making a presenter of somebody like guest से ज्वाइन हो रहे हैं कुछ लोग, तो उनको एडमिट करना पड़ रहा है। ओके, सो अगर कोई आए तो एक्सेप्ट कर लेना उनका इनवाइट। ठीक है, ओके, सही। अभी टी फ्लिप फ्लॉप का देखते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है एक्चुअल में कि हर एक क्लॉक एज पे, जैसे पॉजिटिव क्लॉक एज पे अपन क्या करेंगे कि जो भी इनपुट रहेगा वो इन्वर्ट हो जाएगा। ओके, टॉगल हो जाएगा, अगर 1 है इनपुट तो 0 आएगा आउटपुट, अगर 0 इनपुट तो आउटपुट 1 आएगा। ओके, सो दिस इज द सेम थिंग, मॉड्यूल को इनिशियलाइज किया, इनपुट दे दिया अपन ने, इनपुट आउटपुट इनिशियलाइज कर लिए। ओके, इनिशियलाइज एक्चुअल में डिफाइन कर दिया कि क्यू आउटपुट है, टी रीसेट क्लॉक इनपुट है, और आउटपुट का अपने रेज ले लिया बिकॉज अपन बिहेवियरल स्टेटमेंट्स यूज की तरह यूज कर रहे हैं, तो बिहेवियरल स्टेटमेंट एलएचएस में रेज होना चाहिए। ओके, ऑलवेज रीडियल ब्लॉक के अंदर, तो क्यू अपना रजिस्टर हो गया एट पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक और नेगेटिव एज ऑफ रीसेट। बट वी आर डूइंग कि अगर रीसेट 0 है तब तो सिंपली जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगा। एल्स इफ टी मींस कि अगर जो अपना जो है इनपुट जो है वो अगर 1 है, ठीक है, तो वो सिंपली इन्वर्ट हो जाएगा, एल्स आउटपुट विल रिमेन सेम। ओके ओके, सो ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप है, ये तो ठीक है, इन्वर्ट डिजाइन सिंपली बन गया। अभी टेस्ट बेंच में अपन वो करते थे, तो वही टेस्ट बेंच में आया अपन TFF UET अपन ने फिर से यहाँ पे जो TFF था उसका एक कॉपी स्लाइस किया। ठीक है, क्लॉक दी अपन ने, क्लॉक को अपन ने 32 टाइम्स अपने क्लॉक के लिए बोला कि लूप चलाया 32 टाइम्स, तो ये अपनी क्लॉक बन गई। ठीक है, क्लॉक सिग्नल हो गए जो पूरी अभी
डेसिमल पे अपन यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। फिर रीसेट को 0 किया, फिर 100 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स के बाद उन्होंने रीसेट को 1 किया। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि इनिशियल टी को अपन इनिशियली 0 कर दिया और फिर टी आफ्टर 20 मिनट्स टी क्या हो गया, टॉगल हो गया कि टी को अपन ने क्या कर दिया कि टी विल इन्वर्ट। ओके, देखो अब यहाँ देखते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो देखो क्लॉक होगा एक्चुअल में कब, एवरी पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक। ओके, सो देखो जब तक रीसेट 0 है तब तक तो कुछ हुआ नहीं, आउटपुट 0 था। ओके, वो तो होना ही है क्योंकि जब तक रीसेट 0 होगा तब तक आउटपुट 0 रहेगा। अब जब रीसेट 1 हुआ तो 1 होने के बाद जो फर्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आई उस पर देखना अपने को कि ये 1 हो गया, 1 कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी क्या थी कि पॉजिटिव एज भी आनी चाहिए थी क्लॉक की, तो पॉजिटिव एज आई क्लॉक की। अब यहाँ पे देखो कि टी की वैल्यू क्या है 1, अगर टी की वैल्यू 1 होती है तो क्या होता है कि जो आउटपुट होता है वो इन्वर्ट हो जाता है। पहले क्या था, क्यू 0 था, तो अभी क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, अगली पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पे जाते हैं। यहाँ पे टी क्या है 0, तो टी अगर 0 रहेगा तो जो आउटपुट क्या होगा, जो पिछला जो आउटपुट था वो सेम ही होल्ड करके देखिए, वो वैल्यू होल्ड हो जाएगी और वो सेम ही आउटपुट आएगा। तो पिछला क्या था 1, तो इसका पॉजिटिव क्लॉक पे क्या आएगा, 1 आएगा आउटपुट। ओके, सो अभी अगली पॉजिटिव क्लॉक पे देखते हैं। यहाँ पे टी कितना है 1, अगर टी 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो पहले आउटपुट क्या था 1, अभी कितना हो गया 0। ओके, सो हियर यू कैन सी ठीक है। अभी ऐसे ही है आगे भी। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। अभी देखो टीएफएफ यूजिंग डीएफएफ, सो दिस इज एक्चुअली हायरार्किकल वे ऑफ मॉडलिंग सर्किट्स। ओके, अभी ऐसा होता है कि अपने पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे। अपन जब बड़ा सर्किट बनाएंगे तो उसमें एक सिंगल कंपोनेंट तो होगा नहीं, मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे और उन्हीं को अपन यूज करेंगे, फिर उनको कंबाइन करके तो ही ना पूरा बड़ा सर्किट बनेगा। तो ये हायरार्किकल अप्रोच ही है। जैसे अपन क्या करना है कि डी फ्लिप फ्लॉप अपन ने बना लिया था ऑलरेडी, डीएफएफ का अपन ने वो लिख लिया था, ये रहा डिजाइन डी फ्लिप फ्लॉप का। ओके, अभी अपन बार बार इसी को थोड़ी ना लिखेंगे, जितनी बार यूज करेंगे वो इसी को थोड़ी लिखते रहेंगे। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली इसकी कॉपी इंस्टेंशिएट कर लेंगे और उसी को यूज करते रहेंगे। ओके, सो अपन ने क्या किया, यहाँ पे टीएफएफ अपन को डिजाइन करना था, तो टीएफएफ क्यू टी क्लॉक रीसेट, इसमें आउटपुट क्यू है, इनपुट क्या थे टी क्लॉक एंड रीसेट। ओके, एंड वायर एक अपन ने वायर ले लिया डी टी, क्योंकि यहाँ पे एक वायर चाहिए अपने को, तो इस वायर को अपन को नेम करना पड़ेगा डी टी। assign dt is equal to q and t bar. Okay, this is simple combination logic. Okay, so अभी अपन ने क्या किया कि जो df अभी ये जो assign dt जो है, dt जो है वो d फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है ना, तो अपन ने एक dff का एक अपन ने कॉपी इंस्टेंशिएट कर लिया tf1 नाम से, उसमें इनपुट क्या गया अपना q and dt एंड क्लॉक, इनपुट क्या गया dt क्लॉक एंड रीसेट, और आउटपुट क्या आएगा उससे। ओके, सिंपली तो अपन ने वो जो dff वाली जो मॉड्यूल थी वो यहाँ पे use कर ली सिंपली। So this is hierarchical way of doing digital designs. Okay, so यहाँ पे देखो जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो जेके फ्लिप फ्लॉप की डिजाइन देखते हैं अपन, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का स्टेट टेबल तो तुम्हें मतलब देखा होगा डीसीएम वर्कशॉप में कि कैसे बनता है, ठीक है। अपन डायरेक्टली टेबल यूज करेंगे बनाने के लिए। तो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है कि जब जे 1 होता है, जे और के जब 0 0 होते हैं और क्लॉक हाई कर दिया अपन ने, ओके, क्लॉक 0 होगी तो फिर कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। अभी जब क्लॉक हाई है 1 है, तो जे और के अगर 0 0 है तो जो आउटपुट होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो पिछला जो आउटपुट था वो सेम आउटपुट रहेगा। ओके, इफ जे इज 0 एंड के इज 1 तो आउटपुट विल बी 0। ओके, इफ जे इज 1 के इज 0 देन आउटपुट विल बी 1 एंड इफ बोथ आर 1 देन आउटपुट विल बी टॉगल। ओके, अगर मान लो पिछला आउटपुट 1 था तो और जे और के भी 1 1 है, तो अगली पॉजिटिव एज जब आएगी तो आउटपुट क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा 1 से। ठीक है, अब इसको डिजाइन कैसे करना है ये इधर देखते हैं अपन, ठीक है। तो अभी अपने को इनपुट क्या क्या चाहिए, जे और के इनपुट हो गया, क्लॉक इनपुट हो गया, आउटपुट क्या हो जाएगा क्यू और क्यू बार। तो क्यू बार को तो अपन सिंपली लिख सकते हैं असाइन क्यू बार इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ क्यू, क्योंकि वो तो क्यू से ही डायरेक्ट आ जाएगा अपना, तो उसको बिहेवियरल लॉजिक में लिखने की कोई जरूरत है नहीं, बिहेवियरल स्टेटमेंट में लिखने की, बाहर अपन डायरेक्टली कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज एट द रेट पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक। अभी जब क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी तब अपने को क्या करना है कि अपने केस स्टेटमेंट्स लगा लिए, ठीक है, जे और के पे। जे और के जब 0 0 होंगे, ये 2 डैश बी 0 0, तो ये अगर हो गया जे और के की वैल्यू 0 0 होगी तो क्यू विल बी क्यू एक्चुअली
उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो पिछली जो आउटपुट था वही अभी नेक्स्ट आउटपुट होगा, ठीक है। इफ इट इज 0 1 J0 K1 है तो क्या होगा आउटपुट, यहाँ से अपने टेबल से देखा था कि आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अपने Q को क्या कर दिया 0 कर दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट में देखो क्या हो रहा है कि जब J1 है K0 है तो Q क्या हो गया 1 हो गया आउटपुट अपना, ठीक है। और JB1 है KB1 है तो Q क्या हो गया Q बार हो गया, टॉगल हो गया, ठीक है। केस स्टेटमेंट लगाया था तो एंड केस एंड मॉड्यूल, ठीक है। ये सिंपल डिजाइन हो गया अपना जेके फ्लिप फ्लॉप का, ओके। यहाँ पे अपन ये यूज कर रहे हैं नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज कर रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें नॉन ब्लॉकिंग ही यूज करना है, ओके। ब्लॉकिंग भी यूज कर सकते हैं बट शुड बी अवॉइडेड, मतलब अगर तुम सीक्वेंशियल डिजाइन बना रहे हो तो ब्लॉकिंग को अवॉइड करना। अभी आगे एग्जांपल देखेंगे कि ब्लॉकिंग कैसे एकदम दिक्कत कर सकता है कि भाई, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट्स में ब्लॉकिंग मत यूज करना, ठीक है। अभी देखो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर देखते हैं, तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में सिंपली यहाँ पे जब अपन डिजिटल डिजाइन बनाते हैं तो उसमें बोलते थे कि S1 और S2 जो है अपनी जो सिलेक्ट बिट्स हैं S1 S2 में मोड स्पेसिफाई करते हैं कि ये शिफ्ट रजिस्टर कैसे काम करेगा। तो 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 1 है तो सिर्फ राइट शिफ्ट हो जाएगा एक बिट से, 1 0 है तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, 1 1 तो पैरेलल लोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने पास वेरिलॉग में डायरेक्टली सिंटैक्स होता है ऐसे, ठीक है। तो अगर x मान लो 7 है तो बाइनरी फॉर्म में ऐसा हो, ठीक है। अगर x ये है और अपन ने ये वाला वो लगा दिया, ये वाला कोड लिखा अपन ने x इज इक्वल टू x लेस देन 1, ओके। सो दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स कि जो x की जो वैल्यू है ना वो एक बिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी और जो इधर का जो बिट आएगा ना वो एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट 0 ही होगा, ओके। तो एक बिट शिफ्ट होगी इस साइड, ठीक है। x लेस देन 3, इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो 3 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, ओके। तो 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट हो गई और बचे हुए जो उस साइड से जो बिट आएगा उसमें 0 हो गया, ओके। ऐसे इधर इसका मतलब ये है कि 2 बिट, अगर ये ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3 होता है तो 3 बिट राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, राइट शिफ्ट हो जाता है, ओके। तो सिंपली अपन ये यूज कर सकते हैं। तो अपने को शिफ्ट रजिस्टर से बनाने की कोई जरूरत है नहीं, सिंपली अपने पास स्टेटमेंट्स हैं वेरिलॉग में यूज करने के लिए, ओके। ये एक्चुअल में वो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का डायग्राम है, ठीक है। ये डिजिटल डिजाइन मतलब देख लो कि इतना बड़ा है वो, तो वेरिलॉग में डायरेक्टली ये यूज करना, ठीक है। ऐसे मॉड्यूल मत बना लेना उसके। ये बोला है कि एक्चुअल में अगर मॉड्यूल बनाना चाहें अपन तो फिर कैसे बना सकते हैं। देखो मॉड्यूल शिफ्ट रजिस्टर बनाना, ये नाम दे दिया अपन ने उसका, ओके। सो आउटपुट्स क्या आगे ए नोड A1 A2 A3 आउटपुट्स, ओके। यहाँ पे जो आउटपुट्स ए नोड A1 A2 A3 आउटपुट्स, ओके। सो इनपुट्स आर आई नोड I1 I2 I3 एंड सेलेक्ट बिट्स, मोड सेलेक्ट करने के लिए S1 S0, ओके। और एक LSB इन आएगा, क्लियर आएगा, क्लोक आएगा, ओके। MSB इन LSB इन, ओके। अगर अपन लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो MSB इन आएगा यूज होगा, और अपन राइट शिफ्ट करते हैं तो LSB इन यूज होगा, ओके। और क्लोक और क्लियर, ठीक है। सो एट ऑलवेज एट द रेट पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक, नेगेटिव एज ऑफ क्लियर भी। सो यहाँ पे क्या हो गया एसिंक्रोनस रीसेट हो गया, रीसेट जब भी 0 होगा तभी आउटपुट अपना 0 हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव की पॉजिटिव एज क्लॉक आई है कि नहीं आई है, ओके। क्योंकि ये भी इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट उनको ट्रिगर कर देगा, ठीक है। और इसके अंदर एक स्टेटमेंट है कि अगर क्लियर 0 है तो आउटपुट भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक और नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक ये दोनों ट्रिगर करेंगे, मतलब ये दोनों जो ट्रिगरिंग इवेंट्स हैं ये एक्चुअल में अंदर जितना भी कोड है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस रीसेट हो गया अपना। एल्स केस स्टेटमेंट दे दिया अपन ने कि अगर S1 और S0 0 है तो अपन ने क्या बोला था कि नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा, शिफ्ट नहीं करेंगे अपन, जो आउटपुट था वो सेम ही आउटपुट रहेगा, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि 0 1 है, ठीक है। तो 0 1 का मतलब क्या है कि शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट मतलब कि अपने पास शिफ्ट राइट करने की, शिफ्ट राइट करेंगे तो अपन क्या होगा अपने पास कि जब अपन MSB इन दिया है, ठीक है, वो आ जाएगा और बाकी सारी बिट्स एक एक बिट से शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, जो आउटपुट जो था उसकी जो जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी उसको छोड़ दिया और बाकी 3 बिट्स ले ली और उनको कॉन्केटनेट कर दिया MSB इन के साथ, ठीक है। एक्चुअल में यही है वो, यहाँ पे अपन ने देखा था जैसे लेफ्ट शिफ्ट की देखते हैं तो 1 0 मतलब लेफ्ट शिफ्ट, और लेफ्ट शिफ्ट में क्या किया, जो LSB इन था वो आ जाएगा लेफ्ट साइड से, और जो बचा हुआ इस साइड का पोर्शन क्या था, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी वो तो बाहर चली जाएगी,
ठीक है। तो उसको तो अपन ने हटा दिया और बाकी बची हुई 3 बिट्स को अपन ने LSB के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे देखो, ये जो अपन ने 7 था, तो अपन ने जब इसको लेफ्ट सेट किया था तो ये जो 0 था ये तो बाहर चला गया था। तो अपन को क्या करना था, ये बची हुई ये जो बिट्स थी, बाकी की 6 बिट्स, इनको कनेक्ट करना था इनके साथ जो LSB इन आया। यहाँ पे LSB इन डायरेक्ट यहाँ पे 0 ले रहे हैं। अब LSB इन कुछ भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था। ओके, सो यहाँ पे अगर 1 होता तो 1 1 1 1 4 टाइम्स होना था। ओके, फिर देखो, फिर बोला है 1 1, अगर एक्चुअल में 1 1 है तो 1 1 में क्या है, पैरेलल लोड। तो लोड में अपन ने क्या दिए हैं, इनपुट्स I0 I1 I2 और I3। तो A क्या हो जाता, I हो जाता, आउटपुट्स तो होते वो लोड इनपुट्स हो जाते। ओके, सिंपली। सो ये एक्चुअल में वो मॉड्यूल हो गया। लेकिन अगर ये एक्चुअल में इसलिए कि LSB इन और MSB इन अगर कुछ है अपने पास, जैसे अपने डिफाइन करा कि 1 है, तो उसके लिए बाकी अगर सिंपली अपने को शिफ्ट करना है तो अपन ये वाले सिंटेक्स लगा सकते हैं। 4 बिट ट्रिपल काउंटर। तो अभी 4 बिट ट्रिपल काउंटर कैसे काम करते हैं देख लेते हैं एक बार, है ना, फिर बाद में देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखना पड़ेगा। तो अभी ये काम कैसे करता है देखो, जैसे क्लॉक आएगी यहाँ पे, काउंट क्या है एक्चुअली, जो काउंट जो इनपुट एक क्लॉक ही है ना, तो क्लॉक आएगी तो ये बार लगा हुआ है यहाँ पे, डॉट जो लगा हुआ है, मतलब ये कि नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पे ये ट्रिगर होगा, जो भी होना है, जो मतलब आउटपुट जो अपडेट होंगे वो नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पे अपडेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि ये जो डी फ्लिप फ्लॉप लगाया अपन ने, तो ये तो डी आउटपुट जो हो गया, ये तो आउटपुट हो गया, ये इसका बार हो गया। ठीक है, तो वो अपन ने क्या दे दिया, फिर से इनपुट दे दिया। तो इनिशियली अपन ने मान लिया कि A0 A1 A2 A3 सारे कौन से हैं, सारे जो हैं वो जीरोज हैं। ओके, 0 0 0 0। ओके, सो अभी जब नेगेटिव जब क्लॉक आएगी तो ए नोड क्या होगा, डी, और डी को अपन ने क्या दिया है, जो आउटपुट था उसका नेगेशन। ए नोड पे मान लो पहले 0 0 0 था, तो ये यहाँ पे क्या, ये ए नोड पहले अगर 0 था तो ये क्या हो गया 1। ठीक है, तो जब अगली नेगेटिव एज क्लॉक आएगी तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू 1 थी। अब यहाँ पे 1 आया तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा। तो अगली नेगेटिव एज क्लॉक पे ये जो आउटपुट होगा वो भी 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। ओके, आगे समझ गए तुम कि ये कैसे काम कर रहा है। फिर अपन ने ये वाला जो है, ये इसको अपन ने अगले वाले डी फ्लिप फ्लॉप की जो है, नेक्स्ट डी फ्लिप की क्लॉक दे दिया। ओके, सो सी हियर नाउ, ये जो क्लॉक है, ये क्लॉक की फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में हाफ हो जाएगी। वो टाइमिंग डायग्राम से देख सकते हैं कि कैसे हाफ होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में देखो ऐसे करना है कि ये फिर आगे वाले अपन ने क्या किया कि उसकी क्लॉक बना दी और उससे नेक्स्ट वाले को अपने नेक्स्ट वाली क्लॉक बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, क्लॉक की मेन क्लॉक से, जैसे क्लॉक की फ्रीक्वेंसी कुछ f है तो ये f/4 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो जैसे नेक्स्ट क्लॉक आई अपने पास, इनिशियली ये सब 0 थे, तो जैसे अपन ने नेगेटिव एज दी, जैसे नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक आया अपने पास, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपडेट हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव एज पे क्या हुआ, ये क्यू नोड जो है ए नोड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, बाकी सब क्या थे 0, क्योंकि ये सब वैल्यूज तो सेम ही रही, इनमें कुछ चेंज आया नहीं, क्योंकि ये 1 हुआ है तो अभी जाके यहाँ पे जो क्लॉक होगी वो तब 1 होगी ना, पहले तो 0 था यहाँ पे, तो अब 1 हुई। अब ये यहाँ पे क्लॉक क्या हुई, 0 से 1 हुई। ठीक है, ये 0 से 1 हुई मतलब पॉजिटिव एज आया क्लॉक का, तो पॉजिटिव एज पे तो ट्रिगर होगा नहीं कोई इवेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लॉक जब यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले क्या था, अब 1 था, तो अब ये 1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो जब ये 1 से 0 होगा, यहाँ पे 2 क्लॉक आ चुकी हैं। ठीक है, तब एक पॉजिटिव नेगेटिव एज आया, यहाँ पे 2 बार नेगेटिव एज आ चुका है ऑलरेडी इस डी फ्लिप फ्लॉप के लिए, तब इस डी फ्लिप फ्लॉप के डीएफएफ के लिए एक नेगेटिव एज आया है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अपने आप होगी, तो अब इस नेगेटिव एज पे क्या होगा, ट्रिगर होगा। ठीक है, तो ये ट्रिगर हुआ तो यहाँ पे पहले 0 था तो ये 1 हो गया। ओके, ये 1 आया। अभी ये यहाँ पे जब नेगेटिव एज 2 बार आएगी तो ये 2 बार ट्रिगर होगा। ओके, यहाँ पे 2 बार कब आएगी, जब ये वाली जो क्लॉक है इस पे 4 बार नेगेटिव एज आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये इस वाली की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, f/4 होगी। ओके, इस वाली फ्रीक्वेंसी f/4 होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, f/8 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही है, जैसे ये ट्रिगर हो रहा है हर एक क्लॉक पे, क्यू नोड देखो। ठीक है, और Q1 ट्रिगर होगा हर 2 क्लॉक्स के बाद।
ठीक है, यहाँ पे Q2 ट्रिगर हो रहा है हर 4 क्लॉक के बाद, ठीक है, और Q3 ट्रिगर हो रहा है हर 8 क्लॉक के बाद, 8 नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक के बाद एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एज पे ट्रिगर हो रहे हैं। ओके, सो तो ये है, और इसका कोड तो सिंपली ये हायरार्किकल डिजाइन से बना सकते हैं अपन, वो जो अप्रोच हायरार्किकल अप्रोच थी उससे, ठीक है। मॉड्यूल इनिशियलाइज किया और अपन ने मतलब इनिशियलाइज नहीं, नाम दे दिया मॉड्यूल का कि ये है, इनपुट आउटपुट अपन ने डिफाइन कर लिए, और फिर यहाँ पे अपन ने डीएफएफ बना रखा था, उन डीएफएफ को अपन ने डायरेक्टली यूज कर लिया। ओके, कैसे यूज किया अपन ने, काउंट जो था वो अपन ने डीएफएफ को दे दिया इनपुट, इनपुट इसका आउटपुट क्या हो गया, ए नोड, ए नोड अगले वाले डीएफएफ का इनपुट हो गया। ओके, उसका आउटपुट हुआ ए1, ए1 जो है वो अगले वाले डीएफएफ का इनपुट हो गया, उसका आउटपुट हो गया ए2, और ए2 अगले वाले डीएफएफ का इनपुट, उसका आउटपुट हो गया ए3। ओके, एंड मॉड्यूल, और अपन ने ये इस मॉड्यूल को डिफाइन कर लिया डीएफएफ वाली को यहाँ पे, तो ये डीएफएफ वाली मॉड्यूल है सिंपल, जब रीसेट 0 होगा तब 0 होगा, और रीसेट 0 नहीं होगा तो हैज ऑफ 2 मतलब 2 टाइम यूनिट डिले के बाद नेगेशन हो जाएगा। ये डिले जो है ना, ये डिजाइन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ सिमुलेशन पर्पस के लिए, अदरवाइज ये डिजाइन में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, टेस्ट बेंच बनाई अपन ने, अपन ने क्या किया, काउंट को इनिशियली 0 कर लिया अपन ने, पहले तो काउंट के क्लॉक क्या थी, काउंट ही तो थी, तो पहले तो काउंट जनरेट करेंगे, क्लॉक जनरेट की अपन ने कि हर 5 टाइम्स के बाद क्लॉक क्या हो जाएगी, नेगेशन ऑफ काउंट। ओके, काउंट इज नेगेशन ऑफ काउंट, सो क्लॉक का टाइम पीरियड कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, सो इनिशियल बिगिन काउंट इज इक्वल टू 0, रीसेट इज इक्वल टू 1। ओके, रीसेट को 1 कर दिया, फिर 4 टाइम्स के बाद अपन ने रीसेट को 0 कर दिया, एंड ओके, तो एक ये वाला ब्लॉक हो गया बिगिन एंड में करने कर लिया। फिर एक्चुअल में अपने पास अपने इनपुट क्या था यहाँ पे, क्लॉक ही तो था, काउंटर क्या करेगा, क्लॉक को ही तो काउंट करेगा ना कि भाई कितनी बार अपने पास जो नेगेटिव जो क्लॉक है वो आया है, वही काउंट कर रहा है, तो इनपुट तो क्लॉक ही हो गया। सो डिजाइन में ये इनपुट क्लॉक अपन ने डिफाइन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने इसका एक जो है कॉपी इंस्टेंशिएट करके और इनपुट उसको काउंट दे दिया, ठीक है, तो ये वो हो जाएगा, ये तुम ट्राई कर सकते हो, इसका वो देख सकते हो, टाइमिंग डायग्राम्स देख सकते हो इसके विवाड़ों में, ठीक है। अभी 4 बिट काउंटर, तो 4 बिट काउंटर में सिंपली क्या होता है कि जैसे क्लॉक आई तो क्लॉक की जैसे फर्स्ट नेगेटिव ऑफ क्लॉक आई तो जो आउटपुट जो होगा उसका वो 1 हो जाएगा कि एक क्लॉक आ गई अपने पास नेगेटिव ऑफ क्लॉक, ठीक है। जैसे ही सेकंड नेगेटिव ऑफ क्लॉक आएगी तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड आएगी तो 3 हो जाएगी, फोर्थ आएगी तो 4 हो जाएगी, ठीक है। जब 4 क्लॉक आ गई तो फिफ्थ नेगेटिव ऑफ क्लॉक आएगी तो वो क्या करेगा, वो लूप चलेगा उसमें, ठीक है, फिर वो उसकी वैल्यू वापस 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 4 बिट काउंट मतलब 4 ओके, मैंने 2 बिट काउंट बता दिया, ठीक है। 4 बिट काउंटर में क्या होगा, 15 क्लॉक साइकिल्स तक वो करेगा, क्योंकि 4 बिट में अपन कहाँ तक जा सकते हैं, 15 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो 16 क्लॉक साइकिल जब आएगी तो वहाँ पे वो 16 के बाद 16 क्लॉक साइकिल के बाद वो वापस से रीसेट हो जाएगा, ठीक है, 0 0 0 0। ओके, सो सिंपली यहाँ पे डिजाइन ऐसे बना सकते हैं कि इफ रीसेट इज इक्वल टू 0, रीसेट 0 हुआ तो काउंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, और अगर रीसेट 0 नहीं है तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो यहाँ पे देखो जैसे काउंट की वैल्यू मान लो कि यहाँ पे होगी 15 होगी, 1 1 1 1 होगी, ठीक है, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 1 0 0 0 0, तो 1 के आगे 1 0 0 0 0। ओके, सो 16 ऐसे हो गया, लेकिन अपने पास जो रजिस्टर है वो तो 4 बिट अपने लिया था यहाँ पे काउंट, ठीक है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 जो था वो इग्नोर हो जाएगा और बचेगा कि अपने पास 4 जीरोस बचेंगे, तो वापस से क्या होगा, काउंट की वैल्यू 0 0 होगी तो वो वापस से वही हो गया, फिर से लूप चलेगा, तो वो फिर से 0 से काउंट करने लग जाएगा। ओके, 4 बिट काउंटर का मतलब ये है, तो वो 16 तक क्लॉक साइकिल्स तक ही काउंट कर पाएगा, आगे नहीं कर पाएगा, तो उसका डिजाइन सिंपली ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अभी टाइम क्या हुआ, ठीक है, स्टिल हैव लाइक 10 मिनट्स, सो ठीक है। अभी देखो ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग में एक बार वो देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है ना। कुछ स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास, ठीक है, ये देखो
यहाँ पे देखो अपन ने यूज किए हैं ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज किए हैं सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो अब सिंपली इसमें इस डिजाइन में देखो कि क्या हो रहा है कि अगर Q1 इज इक्वल टू A एंड Q2 इज इक्वल टू Q1, ठीक है। तो एक DFF आ गया यहाँ पे क्योंकि Q1 और Q2 तो रजिस्टर ही थे, लेफ्ट हैंड साइड में रजिस्टर होते हैं। अपन ने जब इनिशियलाइज किया था Q1 Q2 तो वहाँ पे डिफाइन किया होगी रजिस्टर है, तो Q1 रजिस्टर है तो फिर रजिस्टर की DFF फ्लिप फ्लॉप्स में ही स्टोर होती है, तो हमने 2 DFF ले लिए यहाँ पे। सो Q1 इज इक्वल टू A एंड Q2 इज इक्वल टू Q1। सी तो में ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स में क्या होता है कि ये स्टेटमेंट जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक कि ये पहले वाला ना हो जाए, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना उसके बाद ही आगे वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो पहले Q1 इज इक्वल टू A, तो Q1 की वैल्यू A हो जाएगी पहले, ठीक है। फिर Q2 इज इक्वल टू A, Q2 इज इक्वल टू Q1, ओके। उसके बाद ये अगला स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। तो जब Q1 की वैल्यू A हो चुकी है, तो अपना जो सिंथेसिस टूल होगा ना, सिंथेसिस टूल इतना स्मार्ट होता है कि उसे पता लग जाएगा कि भाई जो Q1 में है वो A ही है जो वैल्यू है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली क्या करेगा कि Q2 का जो इनपुट है वो डायरेक्टली A से कनेक्ट कर देगा, ठीक है। अभी इसकी जगह अगर अपने यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज करते हैं, ओके, तो वो दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। जब भी मतलब जैसे ही पॉजिटिव एज क्लॉक आती है तो दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि उस वो पॉजिटिव एज आने से पहले कुछ वैल्यू थी A की, राइट हैंड साइड इवैल्यूएट होता, तो A की कुछ वैल्यू थी, Q1 की कुछ वैल्यू थी, ओके। वो वैल्यू पॉजिटिव एज आते ही Q1 और Q2 को मिल जाती है। तो एक्चुअल में यहाँ पे फिर क्या होता है कि ये जो A से जो इनपुट लिया है ना Q2 इस वाले फ्लिप फ्लॉप का, वो A से नहीं आता, वो Q1 से आता, इसी से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि वैल्यूज ऑलरेडी रेडी होती अपने पास डी फ्लिप फ्लॉप में जाने के लिए। तो Q1 में तुरंत A आ जाता और Q2 में पॉजिटिव आ जाते ही तुरंत Q1 की में जो भी पहले जो वाली थी वो आ जाती, ठीक है। फिर ये वाली जो लाइन थी वो यहाँ आती, ओके। अभी नेक्स्ट डिजाइन देखते हैं अपन, अभी यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखो Q2 इज इक्वल टू Q1 इसमें, और फिर बोला कि Q1 इज इक्वल टू A, ठीक है। तो ये पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स है, तो Q1 की जो वैल्यू थी वो Q2 में जाएगी पहले, तो उसके बाद एक अगला स्टेटमेंट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली Q2 क्या है Q1, तो ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, और Q1 क्या है A है, तो ये वाली डिजाइन बन गई, ठीक है। और जब अपन नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज करेंगे तब तो इस स्टेटमेंट को तुम चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट तुम पहले भी लिख देते नीचे वाला तो वो सेम डिजाइन बनता, ठीक है। तो जैसे अपन ने पीछे में डिस्कस किया था कि कौन सा डिजाइन बनेगा, तो सेम डिजाइन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला डिजाइन बनेगा इसमें, ठीक है। अभी देखो कि ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग लगाने से पूरा डिजाइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर तुम यहाँ से ये जो नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट की जगह ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज करते हो, डिजाइन ये वाला बनता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। ये अच्छे से आना चाहिए वरना डिजाइन पूरा गड़बड़ हो जाएगा और फिर पता भी नहीं लगेगा कि डिजाइन में गड़बड़ कहाँ है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो, ठीक है। अभी ऑलवेज एट द रेट पॉजिटिव ऑफ क्लॉक अपने Q को क्या दिया, A दिया, Q इज इक्वल टू A, Q1 इज इक्वल टू A एंड Q2 इज इक्वल टू Q1। तो जैसे ही पॉजिटिव एज आएगी क्लॉक की तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि ऑलवेज ब्लॉक T इज इक्वल जैसे सेम टाइम स्टेप पे दोनों ऑलवेज ब्लॉक स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव एज क्लॉक जैसे ही आएगी तो Q1 इज इक्वल टू A ये और Q2 इज इक्वल टू Q1 ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होने चाहिए थे। लेकिन सिंस यहाँ पे ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स है ना, तो यहाँ पे कंपाइल अपना जो सिंथेसिस टूल जो है ना वो डिपेंड करेगा कि पहले ये वाला एग्जीक्यूट होता है कि ये वाला एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे अपन नॉन ब्लॉकिंग लगा देते तो वो समझ जाता कि दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करना है, पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आते ही एग्जीक्यूट करना है। तो नॉन ब्लॉकिंग होता तो इसमें ये जो Q1 है ना ये डायरेक्टली से कनेक्टेड हो जाता, कोई एम्बिग्यूटी रहती ही नहीं अपने पास, ठीक है। Q1 डायरेक्टली सेकंड फ्लिप फ्लॉप का इनपुट बन जाता, क्योंकि Q1 इज इक्वल टू A और Q2 इज इक्वल टू Q1, ये पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक दोनों हो जाते हैं, इधर कैलकुलेट होके रहते अपने पास ऑलरेडी A और Q1, और वो Q1 और Q2 में पॉजिटिव एज आते ही फीड हो जाते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे अपने ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, इसलिए वो कंपाइलर पे डिपेंड करेगा कि अपन जो सिमुलेशन टूल यूज करें उस पर डिपेंड करेगा कि वो पहले इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा इस वाले को। एक्चुअल में कोड के हिसाब से तो दोनों सेम टाइम पे होंगे, लेकिन सिंस यहाँ पे ब्लॉकिंग यूज किए हैं तो ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि पहले एक ये वाला आएगा, पहले इनमें से कोई एक होगा, और अगर वो हो रहा है और वो ब्लॉकिंग है तो उसके
नीचे वालों को होने नहीं देगा, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक नीचे वाले नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स होते तो नॉन ब्लॉकिंग का मतलब ये था कि वो फर्दर जो बाद जो स्टेटमेंट्स किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा, सारे एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग अगर अपन यूज करते तो ये कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती, लेकिन ब्लॉकिंग में यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, ठीक है। और ये वाली वीडियोस मैं रिकमेंड कर दूंगा, मतलब शेयर कर देंगे प्लेलिस्ट, यहाँ से तुम फिर थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो अभी इस वर्कशॉप के लिए इतना ही है ना। अब रिसोर्सेज शेयर कर देंगे कि ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग अच्छे से समझ जाना एक बारी।